Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. And today we are going to discuss the very interesting topic about the parenchyma. It is from the chapter number 6 from the 11th standard CBSE, that is Anatomy of Flowering Plant. And we are going to discuss about the parenchyma tissue in detail. So guys, as in a previous lecture, I already taught you parenchyma are basically belongs to the simple living permanent tissue. They are simple permanent tissue. Why they are simple permanent tissue? Just because a complete group of parenchyma tissue are made by the parenchymatous cells. Only parenchymatous cells are there. All these cells are parenchymatous. Therefore, it is a simple tissue. But why permanent tissue? Because this tissue or this cell has lost the capacity of cell division and therefore they are called permanent tissue. मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम इन्हें सिंपल परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सभी के सभी पेरेन्काइमा ही है। इसके लिए हम इसे कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, लेकिन सिंपल टिश्यू। लेकिन परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सेल्स के अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी अभी नहीं है और ये सेल एक स्पेसिफिक साइज और स्पेसिफिक शेप को अचीव कर चुके हैं। इसके लिए हम इसे कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो आइए चलिए देखते हैं परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू पेरेन्काइमा क्या है डिटेल में। तो ये देखिए, ये पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है। हम आज डिटेल में पेरेन्काइमा सेल और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए। पेरेन्काइमा टिश्यू इज अ सिंपल लिविंग परमानेंट टिश्यू। Parenchyma tissue is a simple permanent tissue which have a isodiametric arrangement of a cell, and cell may be oval or it may be the polygonal. क्या होता है? पेरेन्काइमा सिंपल लिविंग परमानेंट टिश्यू से बिलोंग करते हैं और इनके जो सेल्स हैं ये सेल्स आइसोडायमेट्रिक हैं, मतलब ये सभी तरह से एक जैसे ही दिखते हैं। आइसोडायमेट्रिक मतलब ये सभी तरह से एक जैसे ही दिखते हैं। ये सेल्स ओवल हो सकते हैं, मतलब एग के जैसे हो सकते हैं थोड़े बहुत, या तो ये पॉलीगोनल हो सकते हैं, मतलब अलग अलग एंगल में इनकी शेप, मतलब काफी ज्यादा शेप हो सकते हैं, अलग अलग एंगल हो सकते हैं इनके। So the cells of parenchyma may be the oval, may be polygonal, and they are having isodiametric arrangement. So as you can see, these cells are isodiametric. This is polygonal, and this is somewhat. This is also isodiametric, but this is the polygonal. This is sorry oval. तो पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, पॉलीगोनल ओवल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी इंटरनल चीजें देखो। The cytoplasm of parenchyma is a very dense, it's very clear cut. There is a presence of nucleus, presence of a vacuole also, and presence of mitochondria. मतलब जितनी यूकेरियोटिक सेल में चीजें होती हैं वो सभी की सभी पेरेन्काइमा में अवेलेबल होती है। पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर सेंटर पे साइटोप्लाज्म, मतलब सेंटर पे न्यूक्लियस होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, ये सभी चीजें होती हैं। इनका जो सेल वॉल होता है वो काफी थीन होता है। क्यों? क्योंकि ये सेल्यूलोज और पैक्टिन से बना होता है। आप सभी पेरेन्काइमा सेल्स देख लीजिए, इनके सेल वॉल आपको काफी थीन दिखाई देंगे। ठीक है, थीन दिखाई देंगे। और इनका सेल वॉल जो होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, क्योंकि ये सेल्यूलोज और पैक्टिन नाम के केमिकल से बने हुए होते हैं। यस, सेल्यूलोज और पैक्टिन। अगेन आई एम टेलिंग यू, parenchyma cell have a clear cut dense cytoplasm. They also have a nucleus in the cytoplasm at the center. They also contain vacuole, mitochondria, everything is present in this area. Cytoplasm of parenchyma is very clear cut, contain so many organelles like other eukaryotic cell. Yes, they are plant cells, so they must be containing chloroplast. Remember, cell wall of a parenchyma is very thin just because it is made by cellulose and pectin, and just because of cellulose and pectin, this cell wall is not only thin but it is also soft and delicate. And due to soft and delicate, when several parenchyma cells are uniting with each other, they are generating this gap. As you can see, this gap is called intracellular spaces. This gap is called intracellular spaces. Okay, so parenchyma के अंदर
जब भी पेरेंकाइमा सेल बंच में इकट्ठा होते हैं तो इनके ग्रुप में पेरेंकाइमा सेल्स के बीच में, मतलब ये वाले बीच में नहीं, पेरेंकाइमा सेल के ग्रुप के बीच में कुछ गैप बन जाता है और इस गैप को हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेसेस। एक याद रखिए, पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में सबसे ज्यादा गैप होगा तो पेरेंकाइमा में होता है। स्क्लेरेनकाइमा में तो नियर अबाउट नहीं जैसा ही होता है। कोलेनकाइमा में भी हाँ के बराबर होता है, मतलब नहीं जैसा ही होता है। तो पेरेंकाइमा ही ऐसे सेल है जिनके अंदर, पेरेंकाइमा सेल टिश्यू ऐसे हैं जिनके अंदर काफी सारा इंट्रासेल्युलर स्पेस हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये थे पेरेंकाइमा टिश्यू और पेरेंकाइमा सेल। अब आप कहोगे सेल और टिश्यू में क्या फर्क है? तो ये सिंगल है पेरेंकाइमा सेल, ये भी पेरेंकाइमा सेल है, लेकिन ये सभी मिला के क्या बन जाता है? पेरेंकाइमा टिश्यू बन जाता है। ठीक है, क्लियर? अभी आप याद रखिए पेरेंकाइमा टिश्यू का फंक्शन क्या होता है। पेरेंकाइमा टिश्यू का फंक्शन होता है फूड स्टोर करना, फूड को स्टोर करना। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर होती है, वैसे प्लांट में पेरेंकाइमा का काम होता है फूड को स्टोर करना। Remember, in case of a plant body, parenchymas are mainly responsible for storage of a food material. They are mainly responsible for storage of food material. Now, आपको ये तो समझ गया कि पेरेंकाइमा का काम है फूड मटेरियल को स्टोर करना। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पेरेंकाइमा के कितने टाइप्स आते हैं। ठीक है, सो पेरेंकाइमा हैव अ फर्दर 3 टाइप्स। लेट्स बिगिन विद द टाइप्स ऑफ पेरेंकाइमा। कैन यू सी दिस? This is the structure of parenchyma, and there are types of parenchyma such as chlorenchyma, arenchyma and prosenchyma. Chlorenchyma, arenchyma and prosenchyma. ये यहाँ पे Y है, यहाँ पे Photoshop में थोड़ा कट हो गया है. So this is prosenchyma, arenchyma, chlorenchyma. So guys, there are types of a parenchyma such as a chlorenchyma, arenchyma and prosenchyma. If you wanted to note down, you can note down. हाँ, अगर मेरे पास ग्राफिक टेबलेट होता तो मैं यहीं पे लिख के आपको सब समझा देता ये सब चीजें, लेकिन फिलहाल मैं ट्राई करता हूँ ऐसे ही। क्लोरेनकाइमा क्या होते हैं? क्लोरेनकाइमा आर द टाइप ऑफ अ पेरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा आर द टाइप ऑफ अ पेरेनकाइमा। They are containing too much amount of a chlorophyll pigment. They are generally found in the leaf and herbaceous stem, and they are mainly responsible for photosynthesis. According to this function, they are considered as a क्लोरेनकाइमा, a type of parenchyma. क्या होते हैं क्लोरेनकाइमा? क्लोरेनकाइमा वो प्रकार के पेरेनकाइमा होते हैं जो जनरली लीफ में या तो हर्बेशियस स्टेम, मतलब ग्रीन कलर की जो स्टेम होती है, उन्हीं पार्ट्स में पाए जाते हैं, क्योंकि इस क्लोरेनकाइमा टाइप में क्लोरोफिल पिगमेंट काफी ज्यादा होते हैं। देख रही आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो ये क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल पिगमेंट काफी ज्यादा होने के कारण इनको नाम दिया हुआ है क्लोरेनकाइमा। और फंक्शनली ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ पेरेनकाइमा, according to the function type of parenchyma, they are called as a chlorenchyma. So chlorenchyma वो पेरेनकाइमा है जो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं, इसके लिए मैंने कहते हैं क्लोरेनकाइमा। अब आते हैं दूसरे तरफ एरेनकाइमा। तो आप समझ गए हो कि एयर का मतलब होता है हवा भर जाना। ठीक है, तो कुछ पेरेनकाइमा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर, मतलब ये फ्लोट होते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं। तो जो प्लांट पानी के ऊपर तैरते हैं या तो फ्लोट होते हैं, उनके अंदर एरेनकाइमा होते हैं। क्यों? अब आप मान लो, एक एग्जांपल में देता हूं कि अगर आप बलून में एयर भर दो और उसे पानी के अंदर हाथ से जोर लगा के अंदर धकेल दो, अगर आप हाथ छोड़ोगे तो ऊपर ही आ जाएगा, तैरने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर एयर भरी हुई है। ठीक है, तो फ्लोट करेगा पानी के ऊपर। सेम वे एरेनकाइमा उन्हीं प्लांट में अवेलेबल होता है जिनके अंदर, जो प्लांट पानी के अंदर होते हैं, तो पानी के ऊपर फ्लोट कर सके इसके लिए वहां पे पेरेनकाइमा के कौन से टाइप होते हैं? एरेनकाइमा होते हैं, ताकि ये एरेनकाइमा में ये जो एयर कैविटी है, ये इसमें एयर भर सके, हवा भर सके, और ये पानी के सतह के ऊपर, पानी के लेयर के ऊपर फ्लोट कर सके। इंग्लिश में बता देता हूं एक बार आपको। Erenchyma are the type of a parenchyma which is found in the plant which found in a water. They are aquatic plant. So in the aquatic plant, erenchymas are present. I'll give you example. If you take a balloon and just fill it with your, you can say, air pressure, or fill with the air, and just try to force the balloon in the water. Just put the balloon in the water by pressure, your pressure, by hand pressure, and just leave the hand. So automatically balloon will come on the water surface and it will float on the
water surface. Yes, it will swim on the water surface. It's just because balloon is made by air. Balloon is filled by the air. Okay, balloon is not made by air, balloon is filled by air. So same way, these are the aerenchyma, in which air cavities are there just to store air, and they are found in the water plant. Means they are found in the plant which found in the water or float on the water. Just to float on the water, plant should not sink in the water, they has to float on the water. Therefore there is a air cavity, and such kind of parenchyma are involved in floating on the surface of water, so they are called parenchyma. पानी के ऊपर प्लांट ऊपर तैर सके, ना के अंदर डूब जाए, इसके लिए उनके अंदर एरेनकाइमा नाम के पेरेनकाइमा होते हैं। ठीक है, तीसरे टाइप आते हैं प्रोसेनकाइमा. Prosenchyma are the type of a parenchyma which are generally used to make a, you can say, thread, you can say rope, etc etc. They are used to make a fibers. पेरेनकाइमा वो प्रकार के प्रोसेनकाइमा वो प्रकार के पेरेनकाइमा होते हैं जो रस्सी, धागे, थ्रेड या तो जो सुतली वगैरह आती है खींचने वाली, काफी टाइट होती है, वो वाली थ्रेड्स बनाने में काम में आते हैं, तो ये होते हैं पेरेनकाइमा. ये फाइबरस होते हैं और काफी हार्ड होते हैं. रस्सी जिससे बनती है ना, वो होते हैं प्रोसेनकाइमा. तो प्रोसेनकाइमा भी पेरेनकाइमा के प्रकार है, लेकिन ये है ये थ्रेड बनाने में, रस्सी बनाने में काम आते हैं. तो ये है प्रोसेनकाइमा. तो ये तीनों थे पेरेनकाइमा के टाइप. Prosenchyma used to make a thread. Aerenchyma used to store air just to float on the water surface. Chlorenchyma involved in photosynthesis because they contain chlorophyll pigment. Yes, Prosenchyma thread बनाने में, रस्सी बनाने में, rope बनाने में काम आते हैं. Aerenchyma प्लांट को वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने में काम आते हैं क्योंकि इनके अंदर एयर कैविटी होती है. क्लोरेनकाइमा इनमें फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है, इसके लिए हम इनके कहते हैं क्लोरेनकाइमा. और ये है पेरेनकाइमा. पेरेनकाइमा के सेल्स आइसोडायमेट्रिक होते हैं, ओवल होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं. इनके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया सभी चीजें होती हैं. सेल वॉल इनका थीन होते हैं क्योंकि ये लिग्निन ये पैक्टिन और सेलुलोज से बना हुआ होता है. ठीक है, तो ये थे हमारे पेरेनकाइमा. गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें. So today we are going to discuss about this topic called collenchyma, another type of a plant tissue which is generally found in several layers of a plant, several layers of especially dicot stem. So we will discuss this topic. This topic is actually belong to the 11th standard CBSE from the chapter number 6, Anatomy of Flowering Plants, collenchyma. Let's begin with a collenchyma. So, what are these actually collenchyma? This is the bunch of a cells. All the cells in the bunch is basically collenchymatous cells, and this tissue is called collenchyma tissue. First of all, I wanted to tell you what is main difference between collenchyma tissue and what is meant by collenchyma cells. So you can see this, all these cells are collenchyma. This is collenchyma cell, this is collenchyma cell, this is collenchyma cell. I mean to say all these cells, as you can see from your eyes properly, all these cells are collenchyma cells. And when all these cells are making a bunch, making this tissue is called as a collenchyma tissue. Okay, let's start with a discussion about this. Collenchyma are simple living permanent tissue. Collenchyma are simple living permanent tissue. Why we call them simple? Just because in this tissue there are so many cells, but all the cells are belong to the same category called collenchyma cell, and that's why this tissue is called simple tissue. But why we called it as a permanent tissue? Why we called it as a simple living permanent tissue? Just because all these cells have lost the capacity of a cell division, as well as they have occupied specific size and specific shape, and therefore they are called as a simple living permanent tissue. Okay. Now the cell wall of a collenchyma is a more thick as compared to the parenchyma. I told you the parenchyma. In the parenchyma, the cell wall was a slightly thin, just because it was made by the starch. It was made by the starch and pectin. Remember, in collenchyma also there is a starch and pectin is present, but the amount of a starch and pectin present in collenchyma is more as compared to the parenchyma.
parenchyma, and that's why this cell wall of collenchyma is a more thick as compared to the parenchyma. Okay guys, and as the cell wall is a more thick, intracellular spaces are nearby absent. Intracellular spaces are nearby absent. You can see some space is there, but it is very minute space, and you can say that intracellular spaces is absent or nearby absent. ठीक है, पहले मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ. कोलेनकाइमा टिश्यू प्लांट का वो टिश्यू होता है जो काफी ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, जैसे डाइकोट स्टेम हुआ. डाइकोट स्टेम के काफी लेयर्स होते हैं जिसमें कोलेनकाइमेटस टिश्यू अवेलेबल होते हैं. कोलेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं वो पूरे के पूरे कोलेनकाइमा सेल से बने हुए होते हैं. इसके लिए इसे हम कहते हैं सिंपल लिविंग परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो सेल हैं जिनके अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी अभी नहीं है, और इन सेल का स्पेसिफिक साइज और स्पेसिफिक शेप जो है वो परमानेंटली वैसा के वैसा ही है. तो तभी हम इसे कहते हैं यस परमानेंट टिश्यू, सिंपल लिविंग परमानेंट टिश्यू. सिंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल है वो सभी एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. वो सभी के सभी कोलेनकाइमा सेल्स हैं, कोलेनकाइमेटस सेल्स हैं. इसके लिए हम इसे कहते हैं सिंपल टिश्यू. लेकिन इसे परमानेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी भी नहीं है, ना ही इसमें कोई शेप चेंज होता है. इसमें जो शेप है वो हमेशा वैसे ही रहता है, सेल जैसे हैं हमेशा वैसे ही रहते हैं. ठीक है, तो ये कोलेनकाइमा टिश्यू. और आगे की बात है, कोलेनकाइमा टिश्यू में जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल काफी थिक होता है कंपेयर टू द पेरेंकाइमा. क्योंकि पेरेंकाइमा में जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है और डेलिकेट सॉफ्ट होता है. पेरेंकाइमा में जो सेल वॉल होता है वो पैक्टिन और ज्यादातर सेल्यूलोज से बना हुआ होता है. ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कोलेनकाइमा का सेल वॉल भी सेल्यूलोज और पैक्टिन से बना है. लेकिन पेरेंकाइमा में सेल्यूलोज और पैक्टिन की कॉन्सेंट्रेशन या तो क्वांटिटी आप कहो वो काफी कम थी, लेकिन कोलेनकाइमा में सेल्यूलोज और पैक्टिन की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, और काफी ज्यादा होने के कारण सेल वॉल काफी थिक हो जाता है. आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे इस प्लांट के सेल वॉल की, मतलब इस कोलेनकाइमा सेल्स की जो सेल वॉल है वो काफी थिक है, क्योंकि इसके अंदर सेल्यूलोज और पैक्टिन काफी ज्यादा है. उसके पास वाला सेल है उसमें भी सेल्यूलोज पैक्टिन ज्यादा है, उसके पास वाला ये वाला सेल उसमें भी सेल्यूलोज पैक्टिन ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है. और सभी सेल्स में अगर सेल वॉल में अगर सेल्यूलोज और पैक्टिन ज्यादा है तो ये सभी सेल्स थिक होगी, और थिक होने के कारण इनके बीच में जो गैप बनता है इंट्रासेल्युलर स्पेस, ये डायरेक्टली जीरो के जैसे हो जाता है. तो मतलब इंट्रासेल्युलर स्पेसेस ना के बराबर प्रेजेंट है, मतलब आप समझ लो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस है ही नहीं, ऐसा समझ लो आप. ठीक है, कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? ठीक है, where the कोलेनकाइमा is found. Generally कोलेनकाइमा is found in a 3 to 4 layer. कोलेनकाइमा is generally found in a 3 to 4 layer of a, it is found in 3 to 4 layers of a hypodermis of a dicot stem. डाइकोट स्टेम के हाइपोडर्मिस लेयर में, डाइकोट स्टेम के हाइपोडर्मिस लेयर में 3 से 4 लेयर कोलेनकाइमेटस सेल से बनी हुई होती है, कोलेनकाइमेटस टिश्यू से बनी होती है, और ये जनरली हर्बेशियस प्लांट के स्टेम में पाए जाते हैं. और अगर हम ये देखें कि मोनोकोट स्टेम में, तो मोनोकोट स्टेम में कोलेनकाइमा नहीं होते हैं, ना ही रूट में कोलेनकाइमा होते हैं. सो कोलेनकाइमेटस टिश्यू इज जनरली फाउंड इन herbaceous stem of a dicot in a 3 to 4 layers of a you can say hypodermis, and it is absent in the monocot as well as I mean to say it is absent in the monocot stem and as well as it is absent in the root. अगर हम इंटरनल कंपार्टमेंट की बात करें तो कोलेनकाइमा में बीच में साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और वैक्यूल, ये सब चीजें कोलेनकाइमा के अंदर होती है. यस, if you talk about the internal compartmentalization about the collenchyma, so yes, collenchyma have a cytoplasm, collenchyma have a true nucleus at the inside the cytoplasm, collenchyma also possess vacuole, mitochondria, everything is present in the collenchyma, same like a parenchyma, but difference between parenchyma and collenchyma is collenchyma cell wall is a much even thicker as compared to the parenchyma, just because in collenchyma cellulose and pectin quantity in cell wall is a too much, it's a more compared to the parenchyma, and therefore collenchyma have a more thick cell wall.
as well as intracellular spaces is totally absent in the or nearby absent in the I mean to say in the collenchyma compared to the parenchyma. Okay, now what is the function of collenchyma? collenchyma के function रोल क्या होते हैं प्लांट की बॉडी? अगर हम रोल की बात करें तो काफी सारे रोल होते हैं. सबसे पहले कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है प्लांट को. ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ये दो मेन फंक्शन है. जिस प्लांट में अगर कोई प्लांट का स्टेम काफी पतला है और प्लांट के सामने अगर एयर का फोर्स आता है, प्लांट के सामने अगर एयर का फोर्स आता है तो एयर का फोर्स की जो पुलिंग एक्टिविटी होती है, वो पुलिंग एक्टिविटी एयर के फोर्स की बेंडिंग एक्टिविटी है, उसको भी कोलेनकाइमा टॉलरेट करने में मदद करते हैं. और अगर अगर कोलेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट ज्यादा हो तो ये फोटोसिंथेसिस भी काम करते हैं. तो ये 5 एक्टिविटी देख लीजिए. कोलेनकाइमा gives a support to the plant body. Collenchyma gives a mechanical support to the plant body. Collenchyma also provide a flexibility to the plant body. If a collenchyma contain chlorophyll pigment, they can also do the photosynthesis for the plant. If a when the plant have a very thin stem and plant is erect in position, straight in position, when air force come, so bending of a plant due to the force of air can also be tolerated by the collenchyma, and collenchyma also protect the plant from pulling. Yes, so these are number of functions of plant. These are number of functions of a collenchyma tissue in the plant body. We have understood introduction of the collenchyma, that these are simple living permanent tissue. एक बार फिर से सुन लीजिए. collenchyma are simple living permanent tissue. The cell wall of a collenchyma is much thick just because extra deposition of a cellulose and pectin. Cytoplasm of collenchyma contain nucleus at the center, vacuole, mitochondria, everything. Cell wall is much thickened and therefore intracellular spaces are nearby absent. Collenchyma basically help in the photosynthesis if they can contain chloroplast. They provide some flexibility, they provide some mechanical support, they protect the plant from the bending as well as pulling effect. So this was about the collenchyma. ठीक है? Hello, good evening to everyone. Welcome back to my channel. This is Professor Nilesh Anandwani. I welcome you from my YouTube channel, that is Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. Today I am going to teach you one of the very surprising and very different kind of a plant tissue, that's called sclerenchyma. You know what is a unique property about sclerenchyma? ठीक है, यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्लेरेंकाइमा की? अगर आपको ये चीज मैं अगर आपको ये पूछूं कि कोई सेल डेड होने के बावजूद भी अपना काम कर सकती है क्या? ठीक है, मान लो हमारी बॉडी में, या तो आप ऐसे ही समझो कि किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद वो वर्किंग कर सकता है. तो स्क्लेरेंकाइमा एक ऐसे सेल्स होते हैं जो बिगिनिंग में लिविंग होते हैं और मैच्योरिटी होने के बाद, अडल्ट होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद वो परफेक्टली काम करते हैं. तो इन्हें हम कहते हैं स्क्लेरेंकाइमा. ठीक है, अगर आपको शायद पता ना भी हो तो ये चीज आप लोगों के लिए है. ये देखिए एक प्लांट का माइक्रोस्कोप में फोटो लिया गया हुआ है और ये जो पार्ट है इसको हमने जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, और ये भी स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है, वही है. सो वेलकम बैक. लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक कॉल्ड स्क्लेरेंकाइमा इन डिटेल. यस, नाउ व्हाट इज स्क्लेरेंकाइमा? स्क्लेरेंकाइमा, अब ये याद रखिए, जब मैं आपको पेरेंकाइमा और कोलेनकाइमा पढ़ा रहा था तब मेरा पहला स्टेटमेंट होता था दे आर सिंपल लिविंग परमानेंट टिश्यू. ठीक है, अब मैं लिविंग और डेड कहां बोलता हूं ये आप ध्यान से सुनिए. स्क्लेरेंकाइमा आर सिंपल लिविंग एट बर्थ, लिविंग एट ओरिजिन. ठीक है, बर्थ मतलब ही ओरिजिन. ठीक है, sclerenchyma are simple living at origin and dead at maturity type of a simple permanent tissue. हम इस स्टेटमेंट को, इस सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. sclerenchyma are simple living at origin and dead at maturity type of a cell. sclerenchyma एक ऐसे सेल्स होते हैं जो बिगिनिंग में जब प्रोड्यूस होते हैं, जब उनकी ओरिजिन होती है तो प्रोडक्शन के टाइम पे ये लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं
मैच्योर होने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो ये कौन से सेल है? स्क्लेरेंकाइमा आर सिंपल living at origin and dead at maturity type of a permanent tissue. Why they are permanent? Just because. Why they are simple permanent? Just because this is a sclerenchyma tissue, as you can see. In complete this sclerenchyma tissue, all these are sclerenchyma cell. This is sclerenchyma cell, this is sclerenchyma cell, this one is also sclerenchyma, this one, I mean to say all these cells are sclerenchyma. Now all these sclerenchyma cell came close together and made a tissue. इस टिश्यू में जैसे आप देख रहे हो तो ये सभी के सभी सेल्स स्क्लेरेंकाइमा सेल्स ही हैं, लेकिन जैसे ये सेल एक साथ आ जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है। इस टिश्यू को हम कहते हैं स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। इस टिश्यू को क्या कहते हैं? हम इस टिश्यू को कहते हैं स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। और ये जो टिश्यू है काफी यूनिक प्रॉपर्टी दिखाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी सेल हैं जब वो पैदा होते हैं, जब उनकी ओरिजिन होती है, प्रोडक्शन, तब वो लिविंग होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं इनकी डेथ हो जाती है। कैसे डेथ होती है हम जानते हैं डिटेल में। ठीक है, तो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। Sclerenchyma are simple living at origin and dead at maturity type of a simple permanent tissue. Now, sclerenchyma tissue, they are having cytoplasm, they are having nucleus, they are having vacuole, mitochondria, everything at beginning, at origin. मतलब जब ये सेल प्रोड्यूस होते हैं तब इनमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीजें होती हैं। याद रखिए इनमें न्यूक्लियस भी होता है जब ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इनके जो सेल वॉल होता है वो पेरेन्काइमा में जैसे सेलुलोज और पेक्टिन होता है, लेकिन सेल वॉल काफी डेलिकेट होता है, सॉफ्ट होता है। कोलेनकाइमा में भी सेलुलोज और पेक्टिन होता है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण सेल वॉल काफी थिक हो जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्क्लेरेंकाइमा में सेलुलोज पेक्टिन नहीं होता है, स्क्लेरेंकाइमा में लिग्निन होता है। और लिग्निन होने के कारण सेल वॉल इतनी मोटी और इतनी थिक बन जाती है, इतनी थिक बन जाती है, और थिक बन जाने के कारण इसके अंदर इंट्रासेल्युलर स्पेसेस डायरेक्टली जीरो हो जाते हैं। आपको इंट्रासेल्युलर स्पेस दिखाई नहीं देगी। ठीक है, so intracellular spaces in the sclerenchymas are totally absent. For your kind information, sclerenchyma cells को हम sclerites भी कहते हैं, इनको हम sclerites भी कहते हैं, और इनको ही हम sclerenchyma cells को हम sclerites भी कहते हैं और scleroid fibers भी कहते हैं। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो देखिए, sclerenchyma को हम क्या कहते हैं? sclerites, SCLEREIDS, sclerites भी कहते हैं। इनको हम स्क्लेरेंकाइमा फाइबर भी कहते हैं, इनको हम स्टोन सेल भी कहते हैं। स्क्लेरेंकाइमा के 4 नेम हैं। फर्स्ट वन, स्क्लेरेंकाइमा हैव अ 4 नेम। फर्स्ट one is a on cell sclerenchyma, second one is a sclerenchyma fiber, third one is a sclerites, third one is a sclerites, and fourth one is a stone cell. stone cell क्यों? ये पत्थर जैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। एक याद रखिए आप, स्क्लेरेंकाइमा आर टेपरिंग। टेपरिंग मतलब ये पॉइंटेड होते हैं, इनके जो सेल होते हैं ना, ये पॉलीगोनल ओवल जैसे शेप नहीं होते हैं, ये टेपरिंग होते हैं, मतलब नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। स्क्लेरेंकाइमा सेल्स कहां पाए जाते हैं? दिस इज फाउंड इन द डाइकोट स्टेम during the secondary growth. This is found in the monocot stem. This is found in so many parts. जो भी प्लांट में वुड ज्यादा है, जहां पे लकड़ा काफी ज्यादा होता है, वुड ज्यादा होता है, वहां पे स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू होते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं नारियल में, कोकोनट में, तो कोकोनट आउटर कवरिंग होता है, वहां पे भी स्क्लेरेंकाइमा ज्यादा होते हैं। ठीक है, where the sclerenchymas are present, sclerenchymas are present wherever where there is a too much wood is present, like a coconut outer covering is fully stony, fully you can say woody, so that area is basically having sclerenchyma. अब आप ये याद रखो कि sclerenchyma मर क्यों जाते हैं, डेड क्यों हो जाते हैं। तो ये देखिए, nucleus is present at the center of cytoplasm. As more and more lignin is entered inside the cell. जैसे सेल वॉल के अंदर लिग्निन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो जैसे लिग्निन की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो साइटोप्लाज्म अंदर से कम कम होना लग जाता है। आप सोचिए कि ये सेंटर पे पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो जैसे लिग्निन की क्वांटिटी सेल वॉल में बढ़ जाती है तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये कम कम होने लग जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि न्यूक्लियस एकदम गायब हो जाता है। और अगर किसी के अंदर ब्रेन नहीं है तो वो कोमा में है या तो मर गया, ऐसा समझ लो। वैसे ही अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं तो वो सेल क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। लेकिन डेड होने के बावजूद भी
ये कुछ ऐसे काम में आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप समझ लीजिए हमें घर बनाना हो तो हमें पत्थर ईंट वगैरह लगती है, सेम वे प्लांट में ये ईंट के जैसे काम करते हैं। प्लांट में ये ईंट के जैसे काम करते हैं। क्या काम करते हैं प्लांट में? इनको हम स्टोन सेल क्यों कहते हैं? तभी तो कहते हैं ना स्टोन सेल। तो प्लांट में ये क्या काम करते हैं? देखिए प्लांट में ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, प्लांट में ये स्टिफनेस मतलब हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, प्लांट में ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, और काफी सारी एक्टिविटी बाहर से प्रोटेक्शन देना ये भी उसका काम है। यस, in the plant body sclerenchyma is they are also known as a stone cell. They are providing some kind of a very important property just because they are dead cell. Why they are dead cell and how they are basically dying, that I am telling you. See, this is cytoplasm and this is nucleus and this is cell wall of the sclerenchyma. The cell wall of a sclerenchyma have a lignin, and as more and more quantity of a lignin enter inside the cell wall, the cytoplasm and nucleus basically shrink at the center, and a time come when the lignin is too much, this nucleus basically disappear, and when there is no nucleus in the cell basically undergo death. Yes, and even though death, this cell can perform the function even though being a death cell. What are the function? They provide rigidity to the plant, they provide basically stiffness to the plant, they provide strength to the plant body. Yes, and they also provide protection from outside as they are stone cell. So thank you so much guys for watching this video. This is about the sclerenchyma tissue. If there is any doubt, any question regarding sclerenchyma, you can ask me. मैं आपको फिर से एक बार repeat कर देता हूँ. Sclerenchyma are simple, living at origin and dead at a maturity type of a permanent tissue. These are the tissue which are tapering or pointed, having a tapering or pointed ends. They have cytoplasm, nucleus, mitochondria, vacuole, everything at the beginning. But as they becomes a dead, nucleus basically dissipate and other maximum material get disappeared. The cell wall of a sclerenchyma is a much even thickened due to the deposition of a lignin, not a cellulose or pectin, due to the deposition of a lignin. And due to lignin, nucleus basically disappear. They are providing protection, support, they are providing strength, rigidity, and you can say stiffness to the plant body. Thank you so much for watching this video.